अ वेरी गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों। मैं हूँ आरजे दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो इंस्पिरेशनल विंग्स सीजन 2 ओनली ऑन रेडियो 1 अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो दोस्तों, दिस इज अ शो टू मेक यू फील अप, enthusiastic, positive and happy. And this show is bilingual both in Hindi and English so that all my listeners can get some positivity from this show. तो चलिए फिर बढ़ाते हैं एक कदम पॉजिटिविटी की तरफ और नेगेटिविटी को बिल्कुल खत्म करते हैं अपनी जिंदगी से। तो चलिए दोस्तों, let us enjoy this inspirational ride only on Radio 1, a flight of life. Stay positive, stay tuned, stay happy. हर क्रिकेटर इंस्पायर होता है सचिन से, हर एक्टर इंस्पायर होता है अमिताभ बच्चन से, मगर आपसे कितने लोग इंस्पायर होते हैं? कोई नहीं, मगर अब होंगे, क्योंकि जब आरजे दिव्या लगाएंगी आपकी जिंदगी में इंस्पिरेशनल विंग्स हर मंगलवार ठीक रात 9 बजे रेडियो उड़ान पर, तब आप होंगे दिव्या से इंस्पायर और फिर हर कोई होगा आपसे इंस्पायर। रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो चलिए दोस्तों, इन दिस वेरी फर्स्ट सेगमेंट ऑफ जिंदगी कुछ करीब से, चलिए तो बढ़ाते हैं कदम एक पहलू की तरफ जो जिंदगी के बहुत करीब है, पर अक्सर हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं या उसकी ओर ध्यान ही नहीं देते। तो चलिए फिर लेट अस मूव फर्दर टू दिस पहलू ऑफ आवर लाइफ। हिंदी इंग्लिश दोनों में हम बात करेंगे। स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी। One evening, a boy was sitting with his mother. His mother was flying kite. Well, for some time, the mother was flying the kite and trying to maintain the balance. Soon, the boy observed something and said, जी हाँ, एक शाम एक माँ और उसका बेटा बैठे हुए थे और जो माँ थी वो पतंग उड़ा रही थी। तभी जो वो बेटा था वो ऑब्जर्व कर रहा था, ध्यान दे रहा था और फिर वो बोला, मदर, don't you think that this string is not allowing the kite to fly beyond limits? Don't you think that the string is limiting the strength of kite? Well, जो बच्चा था, बालक था, उसने कहा कि माँ, आपको नहीं लगता कि ये जो पतंग के साथ डोरी बांधी हुई है, स्ट्रिंग सी धागा बांधा हुआ है, ये पतंग को ऊपर उड़ने से रोक रहा है? तो after listening to this, mother was perplexed, but immediately she broke the string, or I should say the thread. जी हाँ, जो माँ थी वो थोड़ी सी कंफ्यूज थी सुन के, पर उसने तभी एकदम से वो जो धागा था, स्ट्रिंग थी, वो तोड़ दी। Immediately the kite flew so high and no longer it was visible, but in a couple of seconds or in a minute the kite was on the floor. जी हाँ दोस्तों, जब माँ ने वो पतंग की डोरी तोड़ दी तो वो पतंग बहुत ऊंची चली गई और एकदम से बहुत दूर चली गई, पर कुछ ही क्षणों में वो जो पतंग थी वो जोर से आके नीचे गिर गई। After seeing this, the boy was disheartened. He was sad. He was sad. Mother sat beside her son and said, well, son, in life also, we often think that when we have reached to a particular point, or we have been very successful in our life, or we are doing something really amazing, we start thinking, or sometimes we otherwise think that our family members, our mother, father, and the loved ones are keeping us from growing. We think that they are limiting us from going beyond our expectations. We think that we should get away from our family members. We should live an independent life. And this way we can grow more and more. But son, you must remember that in life, we, like the kite, we can, for a couple of minutes or for a moment, we can fly very high without the string, or in life without our family, parents, and the ones who are concerned. But soon we'll be on the floor
because this is something our family, the way the string in the case of kite, in our life's case, our parents, family members are the ones who keep on strengthening us. The connection, if maintained, can help us to grow more and more. But friends, in our life, if we are too busy to go towards our careers, to our jobs, to our doing more and getting disconnected with our family members, then this is something alarming, because maybe for that moment you are feeling like, yes, we are independent, we are free from the bounds of our family, but soon, in a couple of days, weeks, or maybe months, you will realize that you have lost something very important, very essential. तो दोस्तों, the moral of this story is that जैसे जो पतंग थी वो बिना धागे के उड़ तो गई बहुत दूर तक, पर उतनी तेजी से, उतनी ही तीव्रता से वापस आके जमीन पे गिर गई। उसी तरीके से अगर हम जिंदगी में सोचते हैं कि अरे अगर हम बाहर निकल के काम करेंगे, अगर हम माँ बाप से दूर जाके काम करेंगे, अपने भाई बहन से, सिबलिंग से दूर जाके काम करेंगे, तो हम बहुत सक्सेस हो जाएंगे, हमें बहुत सक्सेस मिलेगी, हम बहुत सक्सेसफुल हो जाएंगे, और बहुत सी ऐसी चीजें हम सोचते हैं। पर फ्रेंड्स, जो रियलिटी है वो ये है कि अगर हम ग्रो कर रहे हैं और साथ में हमारे पेरेंट्स, फैमिली मेंबर्स कनेक्टेड हैं, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। वी कैन डू वंडर्स। So friends, stay connected with your loved ones, your parents, your family members, siblings, and the ones who love you and you love them. So friends, next time whenever a similar thought pops up in your mind, make sure you get this story to your mind. तो चलिए दोस्तों, इस पर्सपेक्टिव के बाद, इस जिंदगी के एक पहलू के बाद बढ़ाते हैं कदम अगले सेगमेंट्स की तरफ। A series of segments are waiting for you, but before that I have to take a quick break. Happy listening, stay positive, stay happy. Now in this segment of an audio clip, we are going to listen to an inspiring, motivating and helpful audio clip. और जो आज की हमारी ऑडियो क्लिप होने वाली है वो हिंदी में होगी। हो सकता है कि इसकी जो लंबाई है ऑडियो की वो थोड़ी सी लंबी हो, बट इट कैन रियली हेल्प यू चेंज योर लाइफ फॉर बेटर। जी हाँ, ये 25 मिनट्स की ऑडियो क्लिप है, बट बिलीव मी फ्रेंड्स, हो सकता है कि इस ऑडियो क्लिप से आपकी जिंदगी में बहुत सा बदलाव आए और जो आपकी जिंदगी में बहुत अच्छी चीजें लाए। तो चलिए सुनते हैं कि ऐसा क्या है इस ऑडियो क्लिप में, और बात करेंगे इस ऑडियो क्लिप के बिल्कुल उस पार। यू आर लिसनिंग टू इंस्पिरेशनल विंग्स एंड मैं हूँ आरजे दिव्या शर्मा। प्ले करने लगी ऑडियो क्लिप। हैप्पी लिसनिंग, स्टे पॉजिटिव। हेलो, जो कॉन्सेप्ट मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जब मैंने इस कॉन्सेप्ट के बारे में पहली बार सुना तो मैंने कहा ये क्या मजाक है, ऐसा कैसे हो सकता है कि सिर्फ थॉट्स के साथ हम अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। मैंने कहा ये कैसे पॉसिबल है कि सिर्फ थॉट्स के साथ ही हम अपने सारे ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं, अपनी लाइफ में जो चाहे वो पा सकते हैं। पर क्योंकि मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, ट्रेनर हूँ, तो सक्सेस के रिलेटेड कोई भी चीज हो उस पर रिसर्च करना मुझे पसंद भी है और मेरा काम भी है, और उसको सिंपल फॉर्म में लोगों तक पहुंचाना मेरा पैशन भी है और प्रोफेशन भी है। इस कॉन्सेप्ट पे रिसर्च करने के लिए मैंने कई ऑथर्स को पढ़ा, जैसे रोंडा ब्रायन, जैक कैनफील्ड, ब्रेन ट्रेसी। मैंने कई आर्टिकल्स पढ़े, कई वीडियोस देखी, कई लोगों को मिला और खुद भी टेस्ट किया, और उसके बाद मैंने ये मान लिया कि हम जो चाह सकते हैं वो पा सकते हैं। अब सबको इतनी बुक्स ना पढ़नी पड़े, इतने लोगों को ना मिलना पड़े, इतनी रिसर्च ना करनी पड़े, इसलिए मैंने स्टडी के कॉन्सेप्ट को एक सिंपल वर्ड्स में एक सेमिनार की फॉर्म दी। बहुत सारे कॉलेजेस और ऑर्गेनाइजेशन से मुझे इनविटेशन आई इस टॉपिक के ऊपर, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर स्पीच करने के लिए। आफ्टर द सेमिनार्स मैंने नोटिस किया जब लोगों के मुझे मैसेजेस आने शुरू हुए कि सच में उनकी लाइफ में उनके ड्रीम्स भी पूरे हो रहे हैं, उनके गोल्स भी पूरे हो रहे हैं, तो मैंने डिसाइड किया कि YouTube पे मैं इसका एक सेमिनार तैयार करके लोगों को दूं, ताकि हर कोई अपने ड्रीम्स पूरे कर पाए, अपने गोल्स पूरे कर पाए, अपनी लाइफ में जो चाहिए वो पा सके। हो सकता है आपने इस कॉन्सेप्ट के बारे में सुना हो, इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। बहुत सारी बुक्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन की इंपॉर्टेंस तो बताती हैं, लेकिन इसको कैसे यूज करना है, कैसे इंप्लीमेंट करना है, ये बहुत कम बुक्स में बताया गया है। सो इस सेमिनार में हम 5 चीजें डिस्कस करेंगे। नंबर 1, क्या है ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन। नंबर 2, साइंटिफिक रीजंस इसकी एग्जिस्टेंस के। नंबर 3, मेरी खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस
रिगार्डिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन। नंबर 4, आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं और अपनी लाइफ में जो चाहे वो कैसे पा सकते हैं। एंड नंबर 5, ऐसा क्या है जो नहीं करना ताकि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज कर सकें। यूनिवर्स के बाकी लॉज की तरह लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक स्पिरिचुअल एंड फिजिकल लॉ है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप इसको मानते हैं या नहीं मानते, ये आप पे एक्ट करता है। ये एक ऐसा लॉ है जिसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी, आप चाहे लॉ ऑफ ग्रेविटी को याद रखें या भूल जाएं, उसको माने या ना माने, वो आप पे एक्ट करता है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं आपसे बात करते करते थोड़ी देर के लिए अगर लॉ ऑफ ग्रेविटी भूल जाऊंगा तो मैं हवा में उड़ना शुरू कर दूंगा। इसी तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आप माने या ना माने, बिलीव करें या ना करें, ये 24 घंटे दिन रात आप पे काम करता है। ये लॉ कहता है कि हम सब ह्यूमन मैग्नेट्स हैं। हमारी लाइफ में 90% चीजें जो होती हैं वो हम खुद अट्रैक्ट करते हैं, खुद इनवाइट करते हैं। बाकी 10% मैं छोड़ रहा हूं जो कि नेचुरल डिजास्टर्स और नेचुरल कैलेमिटीज है। रेस्ट 90% ऑफ इवेंट्स जो हमारी लाइफ में होते हैं वो हमारे अपने इनवाइटेड होते हैं, वो हमने खुद अट्रैक्ट किए होते हैं। चाहे वो आपके बिजनेस की कोई अच्छी खबर हो, मुझे बिजनेस में बहुत प्रॉफिट्स हो रहे हैं, या फिर कोई बुरी खबर, मेरा बिजनेस लॉस में जा रहा है। आपके एग्जाम्स की अच्छी न्यूज़, मैंने क्लास में टॉप किया, बुरी न्यूज, मैं फेल हो गया। आपके रिलेशन की कोई अच्छी न्यूज, मेरा पार्टनर बहुत अच्छा है। या फिर कोई बुरी न्यूज, मेरा तो तलाक हो गया। आपके जॉब के रिलेटेड कोई गुड न्यूज, मेरी बहुत अच्छी जॉब लग गई। या फिर बैड न्यूज, मुझे नौकरी से निकाल दिया। ऐसी हर चीज या और कोई भी चीज हम अपनी लाइफ में खुद अट्रैक्ट करते हैं। हम अक्सर ये वर्ड्स यूज करते हैं, गुड लक, बैड लक, कोइंसिडेंस, बाय चांस। कोई गुड लक नहीं होता, बैड लक नहीं होता, जस्ट कोइंसिडेंस नहीं होता, ओ बाय चांस नहीं होता। हर चीज हमने खुद इनवाइट की होती है। बुरी चीज या अच्छी चीज हमने खुद अपनी लाइफ में इनवाइट की होती है। और ये सब हम कैसे करते हैं? अपने थॉट्स एंड इमोशंस के कॉम्बिनेशन से। जब भी हम कोई थॉट सोचते हैं, हमेशा उसके साथ एक इमोशन जुड़ी होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई पॉजिटिव थॉट सोचा, लेट्स से हम ओ यस 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 इस बार मुझे प्रमोशन मिल जाएगी, आई एम श्योर इस बार मुझे प्रमोशन मिलेगी, तो एक पॉजिटिव थॉट जुड़ा हुआ है। जब आपका थॉट और इमोशन लिंकअप होते हैं तो आप पॉजिटिव वाइब्स भेजते हो। हम अक्सर कहते नहीं है, यार इस इंसान से मुझे पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, यार इस इंसान से मुझे बड़ी नेगेटिव वाइब्स आती हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि मैं चीजों को साइंटिफिक रेलेवेंस के साथ बताऊंगा, तो यहां पे हम पहले साइंस की बात करते हैं। साइंस में ये प्रूव्ड है कि जब भी हम कोई थॉट सोचते हैं तो हमारे ब्रेन से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंपल्स निकलती है, जिसको ब्रेन वेव या थॉट वेव भी कहते हैं। आप किसी भी डॉक्टर, साइंटिस्ट या फिजिसिस्ट से ये पूछ सकते हैं, वो इस चीज को मानते हैं। हर थॉट वेव की एक यूनिक फ्रीक्वेंसी होती है जो मेजर की जा सकती है। इसी के बेस पे टोयोटा ने एक ऐसी व्हीलचेयर बनाई है जिसके ऊपर बैठ के आप सिर्फ अपने थॉट्स के साथ उस व्हीलचेयर को कंट्रोल कर सकते हो। मींस आप व्हीलचेयर पे बैठ के बिना किसी बटन को दबाए, अगर आप सोच रहे हो कि राइट जाना है, वो व्हीलचेयर राइट जाएगी। आप सोचते हो लेफ्ट जाना है, लेफ्ट जाएगी। सोचते हो सीधा जाना है, वो सीधा जाएगी। ऐसे ही इमोटिव लाइफ साइंसेज नाम की एक कंपनी ने एक ऐसा हेडसेट बनाया जिसको EPOC न्यूरो हेडसेट कहते हैं। उसको पहन के आप अपने कंप्यूटर की गेम्स ऑपरेट कर सकते हो अपने थॉट्स के साथ। आप अपना पूरा कंप्यूटर चला सकते हो अपने थॉट्स के साथ। आप चाहो तो कमरे की लाइट ऑन ऑफ कर दो, कर्टन ओपन क्लोज कर दो, सिर्फ अपने थॉट्स के साथ। सो हमारे ब्रेन से जब ये थॉट वेव्स रिलीज होती हैं तो इस प्लेनेट पे ये ढूंढती हैं अपने सिमिलर नेचर वाले वाइब्रेशनल मैच, यानी सिमिलर नेचर की फ्रीक्वेंसी वाले थॉट्स, लोग, सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस। जब इसको सिमिलर वाइब्रेशनल मैच मिल जाता है तो दोनों फ्रीक्वेंसीज एक दूसरे को एक्टिवेट करती हैं, जिसको हार्मोनिक रेजोनेंस कहते हैं। सो जैसे हमारे थॉट्स होते हैं, उसी नेचर की फ्रीक्वेंसी वाले थॉट्स, लोग, सिचुएशंस के साथ हमारी फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशनल मैच करती है और हम अच्छी चीजें या बुरी चीजें उसी हिसाब से अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। और हम इसको कोइंसिडेंस कह देते हैं। अरे आप ही को कॉल करने की सोच रहा था और आपकी कॉल आ गई। अरे यार यही क्वेश्चन नहीं पढ़ के गया था और यही क्वेश्चन एग्जाम में आ गया। अरे सुबह आपके बारे में सोच रहे थे, आप मार्केट में मिल गए। यार जिस चीज का डर था वही चीज हो गई। हम इन चीजों को कोइंसिडेंस बोल देते हैं, जो कि एक्चुअल में वाइब्रेशनल मैच होते हैं। सो अगर आप पॉजिटिव सोच रहे हो, अच्छा सोच रहे हो कि यस आई एम सो हैप्पी, आई एम सो एक्साइटेड, मैं बहुत खुश हूं, तो पॉजिटिव थॉट्स के साथ आप पॉजिटिव वाइब्स भेजते हो, जिसके साथ अच्छी चीजें आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हो। और अगर आप नेगेटिव सोच रहे हो, नेगेटिव थॉट्स ला रहे हो अपने माइंड में, मैं बहुत उदास हूं, मैं बहुत परेशान हूं, लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं है, लाइफ इज सो डिप्रेसिंग, तो आप नेगेटिव थॉट्स के साथ नेगेटिव वाइब्स भेजते हो और अपनी लाइफ में नेगेटिव चीजों को अट्रैक्ट करते हो। अब मैं आपके साथ अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि अपनी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करने के लिए क्या करना है और क्या नहीं करना। वैसे तो मेरे पास बताने के लिए बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं, लेकिन टाइम को देखते हुए मैं एक दो एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूं। ये उन दिनों की बात है जब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन स्टडी कर रहा था, अलग अलग राइटर्स की बुक्स पढ़ रहा था इसके बारे में। तो एक दिन इवनिंग में मैं कार ड्राइव कर रहा था, FM पे कोई गाना आया जिसमें मुंबई का जिक्र था।
तो मेरे माइंड में एक थॉट आया कि यार बहुत बार मुंबई गया हूं, लेकिन गेटवे ऑफ इंडिया और हाजी अली दोनों जगह देखनी पेंडिंग है। तो मैंने कहा लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यहीं पे टेस्ट करते हैं, यूज करके देखते हैं। तो मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज किया। कैसे किया, कौन कौन से स्टेप फॉलो किए वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करके देखा कि मुझे इसी मंथ में गेटवे ऑफ इंडिया भी जाना है और हाजी अली भी देखना है। वो सारी चीजें की जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि करनी चाहिए, जो मैं आपको आने वाले टाइम में इस वीडियो में बताऊंगा भी। ये डिसाइड करने के 2 दिन बाद मुझे मुंबई से एक कॉल आती है, वहां के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ऑफिस से कॉल आई कि हम अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, थाने कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक करियर फेयर करवा रहे हैं, जिसमें वो मेरा सेमिनार करवाना चाहते हैं करियर गाइडेंस एंड गोल सेटिंग के ऊपर। तो उन्होंने मुझसे डेट्स पूछी, मैंने कहा अवेलेबल है। 10 डेज बाद उनका सेमिनार था। मेरे दिमाग में थॉट आना शुरू हो गया, यस इट इज वर्किंग, लेट्स सी आगे क्या होता है। 3-4 दिन बाद ट्रैवल प्लान्स आए। जब ट्रैवल प्लान्स आए तो मैंने देखा कि ट्रैवल प्लान ऐसा है कि मुझे इवनिंग में वहां पे अराइवल है, उसके बाद सेमिनार है और मिडनाइट में मेरा वापस दिल्ली के लिए डिपार्चर है। तो मैंने कहा इसमें घूमने का, गेटवे ऑफ इंडिया, हाजी अली का प्लान फिट होता नजर नहीं आ रहा। स्टिल मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करना था, टेस्ट करना था, तो मैंने कोई भी नेगेटिव थॉट अपने माइंड में नहीं लाया। एंड आई स्टिल बिलीव, मैंने हर वो चीज कंटिन्यू रखी जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि आपको करनी है। सो ट्रैवल प्लान के हिसाब से सैटरडे को मेरी दिल्ली से मुंबई फ्लाइट थी। मुंबई में इवनिंग में मेरा अराइवल हुआ, मैं सेमिनार की लोकेशन पे पहुंचा, मैंने अपना गोल सेटिंग एंड करियर गाइडेंस पे सेशन दिया। उसके बाद ऑर्गेनाइजर मेरे पास आते हैं और कहते हैं सर एक छोटी सी फेवर चाहिए। मैंने कहा बताइए। कह रहे आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर अपना प्लान एक दिन और एक्सटेंड कर लें, कल हमारी क्लोजिंग सेरेमनी है, बहुत सारे मिनिस्टर्स आ रहे हैं और हम चाहते हैं कल भी आप थोड़ी देर स्टेज पे हमें कुछ सेशन दें। उन्होंने कहा संडे इवनिंग को क्लोजिंग सेरेमनी है, आपके पास पूरा दिन खाली है, अगर आप चाहें तो मुंबई घूम सकते हैं, हम आपके लिए अरेंजमेंट्स कर देंगे। बाहर से तो मैंने बड़ी फॉर्मली कहा ओके श्योर मैं एक दिन एक्सटेंड कर लूंगा, कल आप दिन में मेरा अरेंजमेंट कर दीजिए, मैं मुंबई घूमना चाहूंगा एंड इवनिंग में हम क्लोजिंग सेरेमनी में सेशन कर लेंगे। बाहर से उनको ऐसे बोला, लेकिन अंदर से क्या चल रहा था, गेटवे ऑफ इंडिया यस, हाजी अली यस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यस। एक और पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूं। अप्रैल के महीने में मेरे माइंड में थॉट आया कि मुझे अपनी एक बुक लिखनी चाहिए। बहुत थॉट्स हैं जो मुझे पेन डाउन करने चाहिए और अपनी एक बुक लॉन्च करनी चाहिए। तो मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था और कॉर्पोरेट कल्चर तो आपको पता है, कहने को 5 डेज अ वीक, लेकिन 7 डेज में ऑक्यूपाइड रहता था। मेरे अंडर एक ट्रेनर्स की टीम थी, अलग अलग लोकेशंस पे ट्रेनिंग असाइनमेंट्स चलती थी और एक तरह का फुली ऑक्यूपाइड था। कह सकते हो कि सोने का भी टाइम नहीं था और बुक लिखने का थॉट आया। मैंने कहा अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करके मैंने फिर वो सारी चीजें की जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से करनी चाहिए। मैंने डिसाइड कर लिया कि जून में मेरी बुक लॉन्च होनी चाहिए। 2 दिन बाद ऑफिस में एक बोर्ड मीटिंग हुई जिसमें मेरे बॉस ने कहा कि पंजाब के कॉलेज से एस्केलेशंस आ रही हैं और उनकी डिमांड है कि खुद हिमीश आके ट्रेन करें और यहाँ पे आके चीजें संभालें। तो मेरे बॉस एंड मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि मुझे खुद वहां पे जाना होगा और ऑन साइट 1 महीना रहना होगा। अब बैग्स हुए पैक और हम चल दिए पंजाब। कॉलेज के गेस्ट हाउस में 1 महीने का स्टे, लश ग्रीन कैंपस, आसपास हरियाली ही हरियाली, पूरी तरह से शांति, कोई ट्रैफिक में टाइम वेस्ट नहीं हो रहा। दिल्ली में तो 4 घंटे ट्रैफिक में ही निकल जाते थे, कोई ट्रैफिक में टाइम नहीं वेस्ट हो रहा, कोई त्योहार नहीं, कोई परिवार नहीं, कोई रोज रोज की सोशल गैदरिंग्स नहीं, कोई फैमिली फंक्शंस नहीं। पूरा 1 महीना मेरे पास मेरे लिए। काम के बाद भी इतना टाइम बच जाता था कि मैं रोज अपने थॉट्स को चैप्टर्स में कन्वर्ट करता गया। 1 महीना खत्म हुआ, इधर से असाइनमेंट खत्म, उधर से मेरी बुक खत्म। फिर वापस आके प्रिंटिंग हुई, पब्लिशिंग हुई और थॉट के हिसाब से जून में मेरी बुक बी ऑसम लिव ऑसम लॉन्च हुई। अब चलते हैं 4th पॉइंट की तरफ कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कैसे यूज कर सकते हो और अपनी लाइफ में जो चाहे वो कैसे अचीव कर सकते हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करने के लिए मैं आपको 5 स्टेप बताऊंगा, जिसमें से पहला स्टेप है क्रिस्टल क्लियर गोल्स। बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं होता कि उनको चाहिए क्या। सो पहला स्टेप है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए और वो क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। मान लो आप कहते हो इस साल मेरे पास पहले से ज्यादा पैसे होने चाहिए और मैं कहता हूं कि हैंग ऑन आप मेरी तरफ से 100 रुपीज ले लो। तो क्या ये 100 रुपीज लेने के बाद आपका गोल पूरा हो गया? क्या आप यही चाहते थे कि इस साल 100 रुपीज और ज्यादा हो? सो आपका गोल क्लियर होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कितने पैसे चाहिए और कब तक चाहिए। चाहे किसी छोटे गोल की बात कर लें, एक सिंपल गोल की बात कर लें कि आप कहते हो कि मुझे रीडिंग करनी है। रीडिंग अगर गोल है तो आप चलते फिरते होर्डिंग्स भी पढ़ते हो, टीवी में भी पढ़ते हो, न्यूज़पेपर भी पढ़ लेते हो। तो क्या यही आपका पर्पस था? आपका गोल तब भी क्लियर होना चाहिए कि क्या पढ़ना चाहते हो, किस पर्पस से पढ़ना चाहते हो और उससे क्या अचीव करना चाहते हो। एक पुराना जोक मुझे याद आ गया। ऐसे एक लड़का होता है, वो भी विशेष रखता है। वो कहता है, हे भगवान कुछ ऐसा कर कि मेरे हाथ में एक नोटों का बैग हमेशा हो, नीचे एक बड़ी गाड़ी हमेशा हो और आसपास लड़कियां ही लड़कियां हो।
कुछ महीने बाद उसकी विशेष तो पूरी हो जाती है, लेकिन कैसे? वो बन जाता है एक गर्ल्स बस का कंडक्टर। हाथ में नोटों का बैग हमेशा होता है, नीचे बड़ी गाड़ी हमेशा होती है और आसपास लड़कियां ही लड़कियां होती हैं। सो गोल्स का क्रिस्टल क्लियर होना जरूरी है कि आप क्या चाहते हो। आपके गोल स्पेसिफिक होने चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए, वेल डिफाइंड होने चाहिए, ताकि आपके थॉट्स भी उसी तरीके से हो। सेकंड पॉइंट इज राइट योर गोल्स। अपने गोल्स लिखने चाहिए। ये सुना तो बहुत लोगों ने होता है कि गोल्स लिखने चाहिए, गोल्स लिखने से फायदा होता है, फिर भी मैक्सिमम लोग गोल्स नहीं लिखते। मैक्सिमम लोग यही कहते हैं कि टाइम नहीं है। एक बार एक स्टूडेंट की मुझे कॉल आई कि सर मैं सेमेस्टर में मेरी बैक्स आई हैं, मैं बहुत डिप्रेस्ड हूं, मैं बहुत उदास हूं, अगले सेमेस्टर में पास होना चाहता हूं, कुछ बताइए मैं क्या करूं। मैंने कहा तो एक चीज कर, पहले तो अपने गोल्स लिख अगले सेमेस्टर के लिए। पहले गोल्स लिख, उसके हिसाब से अपना एक्शन प्लान तैयार कर और फिर मुझे कॉल कर, फिर मैं तुझे बताता हूं। फिर 6-7 महीने बाद फिर उस स्टूडेंट की कॉल आती है कि सर इस बार फिर मेरी बैग्स आई हैं, मैं फिर पास नहीं हो पाया, बैग्स बढ़ती जा रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, मैं बहुत डिप्रेस्ड हूं, मैं बहुत उदास हूं। मैंने उसको पहचान लिया, मैंने नंबर सेव किया हुआ था। मैंने कहा तो वही है ना जिसने मुझे पहले भी कॉल किया था। ही सेड यस। मैंने कहा मैंने तुझे कहा था कि तुझे अपने गोल्स लिखने हैं, तूने लिखे? ही सेड नहीं सर नहीं लिखे। मैंने कहा क्यों नहीं लिखे? वो सर इसलिए नहीं लिखे सर, टाइम ही नहीं था सर। मैंने कहा ये मत बोल के टाइम नहीं था, बोल तू बहुत लेजी है, बोल तूने आलस किया, बोल तेरा इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि टाइम 15 मिनट मतलब 6-7 महीने में तुझे 15 मिनट नहीं मिले। तूने फेसबुक भी किया होगा, तूने मूवीज भी देखी होंगी, तू घूमने भी गया होगा, तूने ज्यादा सोया भी होगा, लेकिन अपने गोल्स लिखने के लिए टाइम नहीं था। लेट मी टेल यू कि गोल्स लिखने जरूरी क्यों है। हमेशा कहते हैं ना, जो नजर से हटा वो माइंड से हटा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से जो आपके माइंड में है आप उसी पे फोकस करते हो, उसी के थॉट्स आपको आते हैं। और जो चीज आपको बार बार नजर आती रहेगी ऑटोमेटिकली वो बार बार आपके माइंड में आएगी, बार बार माइंड में आएगी, फोकस होगा, थॉट्स आएंगे, ब्रेन में वो थॉट्स आएंगे, तो वही वाइब्रेशंस जाएंगी। अगर आप रिपीटेडली उस चीज के बारे में नहीं सोच रहे, अगर आप बार बार उस चीज के बारे में नहीं सोच रहे, तो उसके रिगार्डिंग थॉट्स नहीं आएंगे, वो बर्निंग डिजायर नहीं बनेगा, उसके साथ इमोशंस नहीं जुड़ेंगी और वो सिमिलर वाइब्स को अट्रैक्ट आप नहीं कर पाओगे। कंपनीज भी तो यही करती हैं, आपके माइंड में अपने प्रोडक्ट्स को रखने के लिए बार बार आपको रिमाइंडर्स देती हैं। आप बाजार में जाते हो तब भी रिमाइंडर मिलता है, न्यूज़पेपर खोलते हो उनका ऐड होता है, टीवी लगाते हो उनका ऐड होता है। उनके प्रोडक्ट्स आपके माइंड में रहे इसलिए वो बार बार आपको रिमाइंडर्स देते हैं, क्योंकि उनको पता है जो नजर से हटा वो माइंड से हटा। और जो लोग कहते हैं कि नहीं दिमाग में गोल्स हैं, काफी है, मेरे माइंड में मेरे गोल्स हैं, लेट मी टेल यू, हम लोग अपनी लाइफ में बहुत बिजी होते हैं, हमारा दिमाग 100 जगह जाता है, और अगर हमें लगता है हमारे दिमाग में गोल्स है तो सफिशिएंट रिमाइंडर्स नहीं मिलते, क्योंकि दिमाग में 100 और चीजें चलती रहती हैं। अब सुनिए करना क्या है। अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल्स लिखो, रिलेशनशिप गोल्स हो, फाइनेंशियल गोल्स हो, एकेडमिक गोल्स हो या जॉब गोल्स हो, उनको जॉट डाउन करो, उनको एक साथ लिखो कि आप क्या क्या चाहते हो। राइट इट डाउन क्लियरली, स्पेसिफिकली। अपने गोल्स लिखने के बाद अपने आसपास लगा लो, उन जगहों पे जहां पे आपकी बार बार नजर पड़ती है। फॉर एग्जांपल लैपटॉप के वॉलपेपर पे, जितनी बार लैपटॉप खोलो आपके गोल्स आपको नजर आ जाए। मोबाइल की स्क्रीन के वॉलपेपर में, ताकि वहां पे भी आपको जब मोबाइल स्क्रॉल डाउन करो तो आपको अपने गोल्स नजर आ जाए। सुबह उठ के जब ब्रश करते हो तो मिरर के ऊपर, ताकि ब्रश करते हुए आपके गोल्स आपके माइंड में फिर से आए, आपका रिमाइंडर आपको मिल जाए। अलमीरा खोलिए, अलमीरा के साइड पे, ताकि आपको फिर से रिमाइंडर मिले, फिर से आपके माइंड में आपके गोल्स आए। ऐसी जगह पे कि सारा दिन आपके गोल्स आपके माइंड में रहे, ताकि थॉट्स और स्ट्रांग हो, वो डिजायर और बर्निंग हो, उसके साथ और स्ट्रांग इमोशन जुड़े और आप स्ट्रांग थॉट वेव्स रिलीज कर पाओ। और ये गोल्स उनके साथ मत शेयर करना जो लोग अक्सर कहते हैं कि यार मुझे नहीं लगता तू कर पाएगा, यार ये प्रैक्टिकल नहीं है, यार ये तेरे लिए पॉसिबल नहीं है, तेरे बस की नहीं है। वो लोग आपके गोल्स के लिए नेगेटिव वाइब भेज रहे हैं, नेगेटिव थॉट वेव्स रिलीज कर रहे हैं, जिसको हम इंडिया में नजर लगना भी कह देते हैं। हाँ, अगर कोई ऐसा दोस्त है जो कहता है यस यस आई एम श्योर यू कैन डू इट, आई एम विद यू, यार तू करेगा, मैं तुझे रिमाइंड करवाऊंगा, यू विल बी एबल टू डू इट। अगर आपको कोई मोटिवेट कर रहा है, अगर आप में बिलीव रख रहा है, तो उसकी थॉट वेव्स आपके लिए बेनिफिशियल है, तब आप उसके साथ शेयर कर सकते हो। थर्ड स्टेप है विजुअलाइज करना, अपने गोल्स को अचीव होते हुए देखना। अपनी आंखें बंद करके अपने गोल्स की पिक्चर्स अपने आगे लाओ, कोशिश करो मूविंग पिक्चर्स लाओ और देखो आप उनको अचीव कर रहे हो, उनको हासिल कर रहे हो। जनरली हमारा ब्रेन बहुत एक्टिव होता है, बहुत तेज भाग रहा होता है, तो पहले जरूरी है कि अपने ब्रेन को स्लो डाउन करें, अल्फा स्टेट पे लाएं, जिसको हम देसी भाषा में दिन में सपने देखना कहते हैं। विजुअलाइज करने के सबके अलग अलग तरीके हैं, आप अपना तरीका बना सकते हो। मैं आपको अपना तरीका भी बता देता हूं। मैं जनरली क्या करता हूं, एक जगह पे बैठ के पहले लंबी सांसें लेता हूं, ताकि मैं अपने भागते हुए ब्रेन को शांत कर सकूं। फिर अपनी प्रेजेंट दुनिया से, अपने आसपास की दुनिया से कुछ पलों के लिए बाहर जाने के लिए मैं कुछ अलग सा सोचता हूं। आप भी कुछ ऐसा सोच सकते हैं।
मैं जनरली क्या सोचता हूँ, मैं अपनी आंखें बंद करके पहले लंबी सांसें लेता हूँ, मेरा दिमाग बिल्कुल शांत हो जाता है। उसके बाद मैं सोचता हूँ कि मैं एक छोटे से प्लेन में बैठ के इस दुनिया से कहीं और जा रहा हूँ, हिमालयस के पहाड़ क्रॉस कर रहा हूँ, करते 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 ऊपर बादलों में चला गया हूँ। बादलों के ऊपर जाके किसी एक बादल पे मैं बैठ गया हूँ, वो बादल मुझे और आगे ले गया, एक अलग सी दुनिया में, एक अलग से पहाड़ पे ले गया। उस पहाड़ पे मैं उतरा हूँ, वहां पे एक कमरा है, कमरे के अंदर जाता हूँ, वहां पे एक बड़ी स्क्रीन लगी हुई है और साथ में स्पीकर्स लगे हुए हैं। उस स्क्रीन पे मैं अपने गोल्स को विजुअलाइज करता हूँ। मैंने हमेशा उस स्क्रीन पे विजुअलाइजेशन किया, चाहे वो मुंबई में जाके गेटवे ऑफ इंडिया देखना और हाजी अली देखना, चाहे वो मेरी बुक का लॉन्च होना, या अब भी जो मैं विजुअलाइज करता हूँ कि मेरे सेमिनार से लोगों की लाइफ बदल रही है। मैं लोगों के चेहरे देखता हूँ जिनकी लाइफ में मैं खुशियां दे पा रहा हूँ, मैं लोगों के चेहरे देखता हूँ जिनके सपनों को अचीव करने में मैं उनकी हेल्प कर पा रहा हूँ। फिर मैं उस सारे गोल्स को देखता हूँ, उनको विजुअलाइज करता हूँ, उनको फील करता हूँ, उस इमोशन को अपने अंदर लेके आता हूँ, उन थॉट्स को और स्ट्रॉन्ग करता हूँ, उस बर्निंग डिजायर को और स्ट्रॉन्ग करता हूँ और धीरे 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 वापस अपनी दुनिया में आ जाता हूँ। और जब मैं वापस आ जाता हूँ उसी इमोशन में रहता हूँ। आपको भी यही करना है। जब अपनी विजुअलाइजेशन से बाहर आओ तो उसी इमोशन में रहो, उसी फ्लो में रहो जैसे आप सच में वो अचीव कर चुके हो। वैसी वाइब्रेशन रखो, वैसे थॉट्स रखो, वैसी एनर्जी अपने अंदर रखो कि यस आई हैव अचीव्ड इट। और दोस्तों, गोल्स ऐसे हो जो आपके रोंगटे खड़े करते हैं, गोल्स ऐसे हो जो आपकी आंखों से आंसू ले आए। फॉर एग्जांपल, अगर आप स्पोर्ट्समैन हो तो इमेजिन ये करो कि ओलंपिक्स में आपको गोल्ड मिल रहा है, तब निकलते हैं ना आंखों से मोती, उस फील को लेके आओ। मिस यूनिवर्स बन रहे हो, इमेजिन करो तब क्या स्टेट ऑफ माइंड होती है। मेरी ड्रीम कार, उसको इमेजिन करो, ड्रीम जॉब, उसको इमेजिन करो, ड्रीम हाउस, उसको इमेजिन करो और उनको अचीव करने में कैसा लगेगा वैसा फील करके देखो। हम जनरली बड़े सपने देखते नहीं है, बड़ी विशेष रखते नहीं है, इसीलिए हमारे डिजायर्स बर्निंग डिजायर्स नहीं बनते, इसीलिए उस लेवल की इमोशंस नहीं जुड़ती, क्योंकि आप अपने दायरे में ही सोचते हो, आप अपने दिमाग की कंडीशनिंग के हिसाब से ही सोचते हो, आप अपने पुराने बिलीव्स के हिसाब से ही सोचते हो। एक छोटी सी बात मुझे यहाँ पे याद आ गई। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा सर्कस के बाहर जो उनके जानवर बंधे होते हैं, जहां हाथी बंधे होते हैं, उनकी जो चेन्स होती हैं वो बहुत स्ट्रांग नहीं होती। अगर हाथी चाहे तो उनको तोड़ के भाग सकता है। तो ऐसे एक बंदे ने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी सर्कस वालों को पूछा कि आपने अपने इतने जायंट एलिफेंट्स को, इतने बड़े हाथियों को इतनी लाइट और वीक चेन्स लगाई हुई हैं, ये तो इनको तोड़ के भाग सकते हैं। तो सर्कस वालों ने उसको रीजन बताया। उन्होंने बताया कि जब ये हाथी बहुत छोटे होते हैं, बेबी एलिफेंट्स होते हैं, तब ये चेन्स उनके पाँव में लगाई जाती है। तब वो बेबी एलिफेंट्स कोशिश करते हैं भागने की, उनको तोड़ने की, लेकिन उस टाइम पे ये उनके लिए स्ट्रांग होती है, वो नहीं तोड़ पाते। एज एंड व्हेन जब वो एलिफेंट्स ग्रो करते हैं, उनके माइंड में ये कंडीशनिंग बन चुकी होती है, ये बिलीव बन चुका होता है कि वो चेन्स को वो नहीं तोड़ते, इसलिए वो कोशिश ही नहीं करते, वो ट्राई भी नहीं करते उन चेन्स को तोड़ने का। हम भी ऐसे ही करते हैं। हमारे माइंड की कंडीशनिंग हो चुकी होती है, हमारा एक बिलीव बन चुका होता है कि हम बड़ा नहीं सोच सकते, हम बड़ा अचीव नहीं कर सकते, इसलिए हम छोटे सपने रखते हैं और डिजायर्स बर्निंग नहीं होते, थॉट्स के साथ वो इमोशन नहीं जुड़ती और पॉजिटिव वाइब्स, पॉजिटिव थॉट वेव्स निकलती नहीं। अब बात करते हैं फोर्थ स्टेप की। अट्रैक्शन के लास्ट 6 लेटर्स क्या है? ACTION, एक्शन। बहुत लोग, बहुत स्कॉलर्स इस पे डिबेट कर चुके हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक्शन का रोल है या नहीं, ये सिर्फ थॉट्स का लॉ है या इसमें एक्शन की इंपॉर्टेंस है। मैं अपने वर्ड्स में इस चीज को एक्सप्लेन करूंगा एक एग्जांपल के साथ। मान लो आप एक लॉन टेनिस चैंपियनशिप जीतना चाहते हो, आपने क्लियर गोल सेट कर लिया, आपने उसको डिफाइन कर लिया, आपने उसको लिख लिया, आप बार बार उसको विजुअलाइज कर रहे हो। लेकिन चैंपियनशिप के टाइम पे, मैच के टाइम पे आप ग्राउंड में नहीं जा रहे हो, आप ड्रेसिंग रूम में बैठ के बार बार सोच रहे हो मुझे ये लॉन टेनिस चैंपियनशिप जीतनी है। आप ड्रेसिंग रूम में बैठ के विजुअलाइज कर रहे हो, लेकिन आप ग्राउंड में नहीं जा रहे। इट मींस आपकी इंटेंशन और आपका एक्शन मैच नहीं कर रहा, जिस वजह से डिजायर, बर्निंग डिजायर नहीं बन रहा। यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेगा प्रैक्टिस करने में, यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेगा स्ट्रैटेजीज बनाने में, यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेगा चैंपियनशिप जिताने में, लेकिन आपकी इंटेंशन के साथ आपके एक्शन मैच करने जरूरी है। जब मैंने बुक लॉन्च करने का गोल बनाया था तो यूनिवर्स ने मुझे सपोर्ट किया, टाइम दिया, मौका दिया, सिचुएशन दी। मैं लिखता गया, मेरे इंटेंशन और एक्शन मैच होते गए, टाइम मिलता गया, बुक कंप्लीट होती गई। सो जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करोगे तो आपके गोल्स के हिसाब से आपको सिचुएशंस मिलेंगी, लोग मिलेंगे, थॉट्स मिलेंगे, आइडियाज मिलेंगे, आपको उन पे एक्ट करते जाना है। पॉइंट नंबर 5, एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। अगर आप नेगेटिव सोचते रहोगे कि मुझे मेरी लाइफ पसंद नहीं है, मुझे मेरा घर पसंद नहीं है, मुझे मेरी जॉब अच्छी नहीं लगती, तो आप उसी जॉब में रहोगे, उसी घर में रहोगे, क्योंकि नेगेटिव थॉट्स के साथ आप नेगेटिव चीजें ही अट्रैक्ट करते हो।
इसीलिए एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड होना जरूरी है, मतलब थैंकफुल होना जरूरी है कि शुक्र है मेरे पास जॉब है, थैंक यू यूनिवर्स मेरे पास ये जॉब है, बहुत लोगों के पास नहीं होती, हाँ मुझे बेटर जॉब चाहिए बट आई एम थैंकफुल फॉर माई जॉब। शुक्र है मेरे पास घर है, बहुत लोगों के सर पे छत नहीं होती, मेरे पास घर है, शुक्र है, हाँ मुझे बेटर घर चाहिए बट आई एम थैंकफुल फॉर माई हाउस। शुक्र है मेरे पास कार है, हाँ मुझे बड़ी कार चाहिए बट आई एम थैंकफुल फॉर माई कार, बहुत लोग तो बस में ट्रेवल करते हैं। शुक्र है मेरी हेल्थ अच्छी है, हाँ मुझे बेटर हेल्थ चाहिए, लेकिन वो भी तो लोग हैं जो हॉस्पिटल्स में डेडली डिजीजेस से लड़ रहे हैं। सो अगर आप एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड रखोगे, थैंकफुल रहोगे, तो आपकी थिंकिंग पॉजिटिव रहेगी, नेगेटिव थिंकिंग नहीं होगी, नेगेटिव वाइब्स नहीं होंगी, पॉजिटिव थिंकिंग होगी और पॉजिटिव वाइब्स होंगी। अब इस वीडियो का लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट कि ऐसा क्या है जो नहीं करना। बहुत लोग दिन में एक बार विजुअलाइज तो करते हैं और बाकी सारा दिन ये सोचते रहते हैं कि ये एक्ट करेगा कि नहीं, ये काम करता होगा कि नहीं, यार ये सब अचीव होगा कि नहीं। अगर आप कंफ्यूजन में रहोगे, डाउट में रहोगे, तो आपका डिजायर बर्निंग डिजायर नहीं बनेगा, आपका स्ट्रॉन्ग थॉट क्रिएट नहीं होगा। शुरू में टाइम लगेगा, लेकिन जैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको रिजल्ट देने शुरू करेगा, आपका बिलीफ और स्ट्रांग होगा, आपका डर खत्म होगा, आप इसको बेटर समझ पाओगे और उसके बाद आप इससे जल्दी रिजल्ट्स ले पाओगे। आप में से बहुत सारे लोग इस टाइम पे ये सोच रहे होंगे कि हाँ यार अब हम इसको फॉलो करेंगे, हाँ इसको हम यूज करेंगे, लेकिन बहुत आसानी से हम अपनी कंफर्ट जोन में वापस चले जाते हैं। सो याद रखना, अगर हम नेगेटिव रहेंगे तो नेगेटिविटी अट्रैक्ट करेंगे, कंफ्यूज रहेंगे कंफ्यूजन अट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिव रहेंगे पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करेंगे, गोल्स के बारे में सोचते रहेंगे तो हम अपने गोल्स को अचीव करते हुए अपने आप को देख पाएंगे। तो दोस्तों मुझे तो ये लगभग जो 25 मिनट की ऑडियो क्लिप थी वर्थ लिसनिंग लगी और मैंने तो बहुत कुछ सीखा और मुझे उम्मीद है कि यू टू हैव लर्न समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर लाइफ। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये ऑडियो क्लिप, बिल्कुल शेयर कीजिएगा और अगर आपके पास भी है कुछ ऐसा शेयर करने को, प्लीज शेयर एंड आई विल मेक श्योर टू मेक इट अ पार्ट ऑफ दिस इंस्पिरेशनल राइड। तो चलिए इस पॉजिटिव सी, इंस्पायरिंग सी, हेल्पफुल सी ऑडियो क्लिप के बाद एक छोटी सी ब्रेक तो बनती है ना दोस्तों, पर उसके बिल्कुल उस पार बहुत से सेगमेंट है जो कि आपका वेट कर रहे हैं। तो चलिए फिर इसी पॉजिटिविटी के साथ बढ़ाते हैं कदम आगे और सुनते हैं आने वाले सेगमेंट्स को भी, पर उससे पहले एक ब्रेक ले लेते हैं। हैप्पी लिसनिंग, स्टे पॉजिटिव एंड स्टे हैप्पी। Debate is a passion. Debate is an obsession. Debate. It's time to take a stand. Do you think you have an upper hand? Then let's debate every controversial matter in Badalta Door. Every Saturday from 10 p.m. to 11 p.m. only and only on Radio Udan. India, yeah, India, we will sing. We are one Indians, we are Indian. ये आवाज है हमारे मेंबर्स के द्वारा भेजे जाने वाले ईमेल कम्युनिकेशन की। ये आवाज है हमारे ग्रुप के द्वारा ऑर्गेनाइज की जाने वाली कन्वेंशन और वर्कशॉप में पार्टिसिपेट करने वाले लोगों की। और इन सब का नाम है से एवरीथिंग। Say Everything is a group of integration. से एवरीथिंग यानी एक आवाज, विचार और अभिव्यक्ति की। Say Everything means a group of free expression. Say Everything is an international mailing list to learn and share, where the subscribers can discuss every topic of common interest via email exchange from around the world. For more information and to subscribe our mailing list, please log on to www.sayeverything.org. Say Everything, India's #1 international mailing list. Come and join us today.
हमारी लाइफ में अंकों का बड़ा महत्व है। इंडिया ने रंग कितने बनाए, हमारी सरकारों को वोट कितने मिले, और सबसे बड़ी बात, पेपर में नंबर कितने आए। You are listening. Radio U, a flavor life. www.radioU.com. Now friends, in this segment of Thoughts, Quotes, Sayings, Words and Lines, we are going to listen to some other thoughts which can make us feel enthusiastic, up, positive and happy. तो चलिए फिर बढ़ाते हैं एक कदम इन थॉट्स की तरफ, और साथ ही हिंदी इंग्लिश दोनों में हम बात करेंगे. सो स्टे ट्यून्ड, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी. The first thought of this evening is, one moment of patience may ward off great disaster. One moment of impatience may ruin a whole life. ये एक चाइनीज प्रोवर्ब है दोस्तों, कि एक मोमेंट, एक क्षण जो होता है पेशेंस का, धैर्य का, वो बहुत सी बड़े डिजास्टर को, बहुत से भयानक चीजों को होने से रोक सकता है. साथ ही वन मोमेंट ऑफ इम्पेशेंस, जो एक मोमेंट होता है जिसमें हम पेशेंस नहीं रखते, वो हमारी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है. तो चलिए दोस्तों, आप पे निर्भर करता है कि आप पेशेंस रखेंगे कि नहीं रखेंगे. सो वन मोमेंट ऑफ पेशेंस मे वार्ड ऑफ ग्रेट डिजास्टर. वन मोमेंट ऑफ इम्पेशेंस may ruin a whole life. Next thought of this evening is, patience is not just about waiting for something. It's about how you wait or your attitude while waiting. जी हाँ दोस्तों, ये थॉट था जॉयस मेयर द्वारा. वेल, इस थॉट का कहना यही है कि जो पेशेंस है, धैर्य है, इज नॉट जस्ट अबाउट वेटिंग फॉर समथिंग. किसी चीज की वेट करना, प्रतीक्षा करना ही पेशेंस नहीं है. इट्स अबाउट हाउ यू वेट. ये पेशेंस जो है वो ये है कि आप किस तरीके से इंतजार करते हैं, और योर एटीट्यूड व्हाइल वेटिंग, और आपका क्या एटीट्यूड है जब आप वेट कर रहे हैं. तो दोस्तों, दिस वाज अ थॉट बाय जॉयस मेयर. Next thought of this evening is, genius is nothing but a great aptitude for patience. ये थॉट था जॉर्ज लुइस डे बुफन द्वारा. कहने का मतलब है कि जो जीनियस है वो कोई नहीं बल्कि एक इंसान है जो जिसके पास एक ग्रेट एप्टीट्यूड है फॉर पेशेंस. जी हाँ, जिसके लिए पेशेंस में ग्रेट क्वांटिटी ऑफ एप्टीट्यूड है ऑफ पेशेंस का, जिसके पास बहुत सा एप्टीट्यूड है फॉर पेशेंस, धैर्य के लिए. तो जो अगला थॉट है इस इवनिंग का वो ये रहा दोस्तों, इवन अ हैप्पी लाइफ कैन नॉट बी विदाउट अ मेजर ऑफ डार्कनेस, एंड द वर्ल्ड हैप्पी वुड लूज इट्स मीनिंग इफ इट वर नॉट balanced by sadness. It is far better take things as they come along with patience and equanimity. ये थॉट था कार्ल जंग का. जो कहने का मतलब है इस थॉट का वो यही है कि इवन अ हैप्पी लाइफ, जो एक खुशहाल जिंदगी है, उसमें भी बहुत से ऐसे डार्कनेस समय आते हैं, लो पॉइंट्स आते हैं, मेजर्स ऑफ डार्कनेस, and the word happy would lose its meaning if it were not balanced by sadness. जी हाँ, जो शब्द है खुशी, वो भी अपना मीनिंग खो देगी, अर्थ खो देगी, अगर उसे सैडनेस के साथ नहीं मिलाया गया. It is far better take things as they come along with patience and equanimity.
बेहतर यही है कि हम जो जैसे आ रहा है उसे आते जाने दें, पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ। तो चलिए अगला थॉट जो इस इवनिंग का है वो है पेशेंस इज बिटर बट इट्स फ्रूट इज स्वीट। जी हाँ दोस्तों, हो सकता है कि इंतजार करते करते, पेशेंस, धैर्य रखते रखते आप बहुत से बिटर हो गए, बहुत से इरिटेशन होने लगी आपको, पर जो उसके फ्रूट होते हैं वो बहुत मीठे होते हैं, जो उसका आउटकम निकलता है वो बहुत अच्छा होता है। तो फ्रेंड्स, द थॉट पेशेंस इज बिटर बट इट्स फ्रूट इज स्वीट is a thought by Jean Jacques. The next thought of this evening is never cut a tree down in the winter time. Never make a negative decision in the low time. Never make your most important decision when you are in your worst moods. Wait, be patient. The storm will pass. The spring will come. जी हाँ दोस्तों, ये थॉट था रॉबर्ट एच शेकुलर द्वारा। कहने का मतलब है कि नेवर कट अ ट्री डाउन इन द विंटर टाइम। विंटर टाइम में कभी भी एक पेड़ मत काटिए। नेवर मेक अ नेगेटिव डिसीजन इन द लो टाइम। कभी भी आप लो फील कर रहे हैं तो एक नेगेटिव डिसीजन मत ले लीजिए, निर्णय मत ले लीजिए। Never make your most important decisions when you are in your worst moods. जी हाँ, जब आपने वर्ड सबसे खराब मूड में हो तो आप कोई ऐसा डिसीजन मत लीजिए जो कि बहुत महत्वपूर्ण हो। वेट, इंतजार कीजिए, पेशेंस रखिए। जो वो तूफान है, जो वो स्टॉर्म है, वो जल्द ही निकल जाएगी और स्प्रिंग एक अच्छा समय आ जाएगा। ये थॉट था रॉबर्ट एच शेकुलर द्वारा। Next thought of this segment is it is easier to find men who will volunteer to die than to find those who are willing to endure pain with patience. जी हाँ दोस्तों, ये थॉट था जूलियस सीजर द्वारा। ये थॉट कहता है कि इट इज ईजियर, आसान है ये कि आप लोग इकट्ठे कर लें, मैन इकट्ठे कर लें जो वॉलंटियरली मरने के लिए तैयार हो जाएं, देन to find those who are willing to endure pain with patience. जी हाँ, बजाय उनके जो वो लोग जो ये चीज, इस दर्द, इस पेन में से निकलने के लिए, उसका सामना करने के लिए पेशेंस रखते हुए तैयार हो जाए। तो next thought of the segment is I have seen many storms in my life. Most storms have caught me by surprise, so I had to learn very quickly to look further and understand that I am not capable of controlling the weather. To exercise the art of patience and to respect the fury of nature. ये थॉट था पॉलो कैल्हो द्वारा। बहुत ही सुंदर थॉट था। कहने का मतलब है कि आई हैव सीन मैनी स्टॉर्म्स इन माई लाइफ। बहुत से तूफान देखे मैंने अपनी जिंदगी में। मोस्ट स्टॉर्म्स हैव कॉट मी बाय सरप्राइज। कई तूफानों ने तो मुझे बिल्कुल दंग ही छोड़ दिया। सो आई हैड टू लर्न वेरी क्विकली टू लुक फर्दर एंड अंडरस्टैंड दैट आई एम नॉट केपेबल ऑफ कंट्रोलिंग द वेदर। जी हाँ, और इसलिए मैंने ये सीख लिया बहुत ही जल्दी से कि मुझे उसके तूफान के आगे बढ़ के देखना है और समझना है कि मुझ में इतनी काबिलियत नहीं है कि मैं इस चीज को, इस वेदर को, इस मौसम को कंट्रोल कर सकूं। टू एक्सरसाइज द आर्ट ऑफ पेशेंस एंड टू रिस्पेक्ट द फ्यूरी ऑफ नेचर। जी हाँ, अगर कुछ सीखना है तो ये कि पेशेंस कैसे रखूं, धैर्य कैसे रखूं और रिस्पेक्ट कैसे करूं फ्यूरी को, फ्यूरी ऑफ नेचर। एंड द लास्ट थॉट of this evening is patience is the key to paradise. जी हाँ, जो पेशेंस है, धैर्य है, वो एक चाबी है पैराडाइज की। ये थॉट एक टर्किश प्रोवर्ब है। The last thought of this evening is have patience with all things, but first of all with yourself. जी हाँ, ये थॉट था सेंट फ्रांसिस द्वारा कि पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए अपने
चीज़ों के साथ, पर सबसे पहले अपने आप पे धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए। So दोस्तों, these were some thoughts for today and the thoughts were circling around patience, धैर्य। उम्मीद है कि ये पेशेंस वाले थॉट्स आपको बिल्कुल पेशेंस सिखा जाएंगे और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हम पेशेंस रख के अपनी ज़िंदगी में पा सकते हैं और खो भी सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा इन थॉट्स की ओर। आई होप यू रियलाइज दीज पेशेंस थॉट्स एंड अगर आपके पास भी कुछ ऐसे थॉट्स हैं तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। ज़रूर मैं आपके थॉट्स को, क्योट्स को, सेइंग्स को, लाइन्स को इस सेगमेंट का हिस्सा बनाऊंगी। तो चलिए दोस्तों, अभी के लिए मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी होगी, फिर उसके बाद मिलती हूँ आपको नेक्स्ट सेगमेंट में। यू आर लिसनिंग टू इंस्पिरेशनल विंग सीजन 2 विद आरजे दिव्या शर्मा। हैप्पी लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड, स्टे पॉजिटिव। तो दोस्तों, now we are in the final segment of this inspirational ride and now I have to say goodbye to my listeners. But yes, I would like to remind you again that if you want to share anything, your views, feedbacks, ideas or any stuff, you can contact us through our Skype. Our Skype ID is Radio Udan, RADIOUDAAN, and you can also drop in your views on our website, that is www.radioudan.com. तो दोस्तों, what are you waiting for? Let the world hear your voice, yourself and make them positive. तो दोस्तों, साथ ही फेसबुक पे भी आप हमारे पेज पे फॉलो कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं। URL है www.facebook.com/radioudan. So I will meet you same day Tuesday 9 to 10 and repeat every Wednesday 4 to 5 p.m. only on Radio Udan, a flight of life. Till then, एक कदम पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ाते जाइए and I will be back next week. So logging off, RJ Divya Sharma, direct from Ninagar Studio, Punjab, India. Good luck, keep motivating, keep inspiring and happy listening. Stay tuned.